Now next is binary operators. So let's see what are binary operators. So binary operators are very common. So all the arithmetic operators, plus, minus, divide, multiply, they are all binary operators. Binary operator means it will work on two operands. So for example, operand 1 is x and operand 2 is y, and plus is the binary operator. So binary means it works on two operands. Okay. So as you can see here, these are binary operators. Now these operators, which are also called as relational operators, are all binary operators. So all relational operators are binary. All arithmetic operators are binary. The third one is ternary operator. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਜੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 2 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 ਜਾਂ 0 ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੋਲਨ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2, ਉਹ ਜਦੋਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3 ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ a = 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ b = 10, c = a greater b, a: b। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ a greater b, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਇਜ਼ greater than 10, ਇਹ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਬਿਕੋਜ਼ 5 ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ 0। ਜਦੋਂ 0 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, b। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ b, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ c ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਗਾਇਆ c। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ a ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ b ਹੋਣੀ ਸੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 0। ਅਗਰ ਟਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ b। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਲਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ b ਨੂੰ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, c = a greater than b, ਫਿਰ a: b, b: a। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ a greater than b ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ, 5 ਇਜ਼ greater than 10, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 0। तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स फॉल्स है। 0 मीन्स 0 नंबर नहीं, 0 मीन्स फॉल्स हो गई। तो कंडीशन जो फॉल्स होएगी, जो 0 होएगी, दैन जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, इफ कॉलन साइन तो बाद वाला एक्सप्रेशन, दैट विल बी असाइंड। ठीक है। जो भी वैल्यू होएगी, सी की वैल्यू हुण ए होगी, पिछली बारी बी सी, बिकॉज इत्थे हम वैल्यू इंटरचेंज करती है। ठीक है। तो सी की वैल्यू ए के बराबर आ गया।
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 200 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ 200 ਹੈ ਜਾਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ठीक है। तो डिस्काउंट विल बी से 5%, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਲਿਊ, 200 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 5% ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀ ਐਂਡ ਪੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ पर्सन। तो इनू मैं लिखन का तरीका की है, डिस्काउंट इक्वल टू ए परचेज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 200। तो असी इनू बोलना कितना, इफ़ परचेज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 दैन अगर परचेज 200 तो उपर है तो डिस्काउंट कितना होएगा 5%। हम 5% ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय पी क्यों किया, बिकॉज पी इज़ दैट परचेज वैल्यू है जो 200 तो उपर है। ये कंडीशन ये एक्सप्रैशन कदों वैल्यूएट होना, जो आ कंडीशन ट्रू होएगी। ये कंडीशन कदों ट्रू होएगी, जो वैल्यू परचेज की 200 या 200 तो ज़्यादा होएगी, दैन दिस विल बी कैलकुलेटेड। अदरवाइज डिस्काउंट वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो आ चीज़ आप डिस्काउंट जो है उन्होंने मैं प्रिंट करा लूँगा बाद कि कितना डिस्काउंट उस परसन को उस परचेज से मिले, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट को प्रिंट करा लेना। सो इस केस अब परचेज की वैल्यू सपोज कर दो कि मेरी परचेज है 220 की। तो जो मैं इस कंडीशन च पुट करूँगा इसनों 220 नू, तो 220 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 विच इज़ ट्रू। तो यदि आउटपुट क्या आएगी 1। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो असी कहने कि फस्ट जो एक्सप्रैशन है सैकेंड जो एक्सप्रैशन है वो सॉल्व होएगा। तो इस केस दिस एक्सप्रैशन सेज 0.05 इंटू 220 विच इज़ इक्वल टू 11 रुपीज़। ओके, तो 5% जोड़ा हो गया वो की हो गया 11 हो गया। तो 11 जोड़ा वो असाइन हो जाएगा डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट की वैल्यू की आ गई 11 रुपीज़ या सिंपली 11, ठीक है। तो इस केस से इदा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर परचेज की वैल्यू घट है तो मैं कह देना कि इतने परचेज की वैल्यू है 199 विच इज़ लैस दैन 200। तो मेरे एक्सप्रैशन के की एक्सप्रैशन थर्ड जोड़ा वो वैल्यूट होएगा, बिकॉज जोड़ा 199 है अगर मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 200 लिखदा दैन दिस विल रिटर्न 0। तो यदा फॉल्स आएगा। तो फॉल्स आते जो डिस्काउंट की बनता है 0 बनता है। असी ये डिस्काउंट में 0 भी रख सकते हैं या 1% रख सकते हैं, जिस तरीके मर्जी आप कर सकते हैं। तो यदा कॉम्बीनेशन भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका अगर कहने हैं कि 1000 या 1000 तो ऊपर कोई अमाउंट परचेज अमाउंट है, ठीक है। अगर परचेज अमाउंट 1000 या 1000 तो ऊपर है तो उस केस जो डिस्काउंट परसेंटेज है दैट शुड बी 10%। अगर परचेज अमाउंट है 500 तो ऊपर, ठीक है, या 500 या 500 ऊपर, तो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 5%। अगर है 200, ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 2%। अगर लैस दैन 200 तो डिस्काउंट परसेंटेज है 0, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ हूँ इस इन्होंने कंडीशनस जोड़ के एक्सप्रैशन बनाना तो कितना बनेगा। तो सिंपल है,
ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲਸ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ तो इतने डिस्काउंट की वैल्यू जो है अगर 1000 या 1000 तो ऊपर है तो कंडीशन इतने फस्ट एक्सप्रैशन की बनेगा, कंडीशन बनेगी परचेज अमाउंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000। दैन अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने की होना चाहिए, एक्सप्रैशन 2 की बनना चाहिए 10% ऑफ परचेज अमाउंट विच इज़ 0.1 ऑफ पी कॉलन साइन। हम सैकेंड जो एक्सप्रैशन है, जो फॉल्स वाला एक्सप्रैशन है, इस केस की होएगा असी थले जावांगे 500 से, तो अगेन इतने आ जाएगा एक्सप्रैशन P शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 500। दैन जो थर्ड एक्सप्रैशन, हुण ये देखो ये जिहड़ा एक्सप्रैशन है पूरा का पूरा एक कंडीशन तो एक पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। दैन जो परचेज अमाउंट बनेगी 0.05 इंटू P एल्स, फिर थर्ड एक्सप्रैशन आ गया, अगेन मैं इतने लिखूँगा P शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 200, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एक चेन बनाई जा सकती इफ एल्स इफ दी, ठीक है। तो इस केस आ गया 0.02 इंटू परचेज अमाउंट एल्स, अगर इस तो भी थले चले जाने तो 0। हम देखो सारे जो पेयर है क्वेश्चन तो कॉलम के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने भी मैं छड़ नहीं रहा कि इफ तो बाद एल्स ही आ रहा है। दैट मीन जो क्वेश्चन है एक्सप्रैशन 2 आ रहा है, एक्सप्रैशन 3 भी आ रहा है, एक्सप्रैशन 1 भी आ रहा है, बस एक चेन बन गई है। तो चेन के की होएगा जो भी वैल्यू होएगी वो वैल्यूएट होएगी। हुण फॉर एग्जाम्पल मेरी परचेज अमाउंट है 200, 750 कह दें, तो परचेज अमाउंट मेरी 750 है। तो इस केस की होएगा, हुण जब मैं पहली कंडीशन ये मैच करूँगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स होने आप कितने जाना, कॉलन साइन तो बाद इत्थे आवांगे फॉल्स होने तो बाद, बिकॉज ट्रू होने आह होना सीगा बट फॉल्स होने दिस विल हैपन, दिस कंडीशन विल बी इवैल्यूएटेड। तो इस केस से 750 इज ग्रेटर दैन 500, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो आ वाला एक्सप्रैशन वैल्यूएट होएगा क्योंकि ये अंदर आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क तो बाद आ रहा है फस्ट सैकेंड एक्सप्रैशन। तो इस केस जो जवाब है वो की बनता है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 750। तो साडा जो डिस्काउंट है इत्थों कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि जो ये सारे जो एक्सप्रैशन बनाया सी वो अगे लैफ्ट साइड के वेरिएबल डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट वैल्यूएट हो जाएगा विच विल बी यू कैन कैलकुलेट 375, ठीक है। तो 37.5 शायद बनेगा ये, तो कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल बी 37.5। तो आप मल्टीपल जो कंडीशंस है वो भी क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल केसेस भी हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सप्रैशन।